हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीरज भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था विंड सिस्टम के बारे में। वी हैड जस्ट स्टार्टेड आवर टॉपिक एंड देयर वी वेयर लर्निंग फ्रॉम द क्लाइमेटोलॉजी एंड टॉपिक वाज विंड सिस्टम। So how many types of wind systems? We know that there are three types of wind systems. One is permanent winds. Now, how many types of permanent winds are? Very detailed video I have given to you people. I hope that you have gone through that, learned that. Please write in the comment box that if I let me frame a question, that which is a wind which blows from southwest to northeast direction. Southwest to northeast direction means which permanent wind is there which blows from southwest to northeast direction, and it could be from northern hemisphere or the southern hemisphere. Find it out and write in the comment box. All right, so permanent winds, and thereafter we had talked about periodic winds, but I have simply mentioned, and third one is there, and that is the local wind. So dear friends, today we are going to talk about the periodic wind system. Now here you see that which wind system is called a periodic wind system. While talking about the features and the properties of permanent wind, we learned that permanent winds are those one which keep blowing in the same direction throughout the year. Means वो एक ही डायरेक्शन में लगातार सालों भर बहती रहती है। फाइन। और अगर एक ही डायरेक्शन में लगातार वो सालों भर बहती रह रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो लोकेशन है वो लोकेशन भी ऑलमोस्ट फिक्स्ड होगा, अब इसका क्या मतलब? तो देयर यू सी दैट व्हेन वी से दैट इट इज इक्वेटर, it is 30-35 degree, it is 60-65 degree, and it is 90 degree north. Then in this case we are saying that in northern hemisphere these are certain pressure belts. Fine, you just recall कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि एक एयर which is simply a mixture of gas, how does it become a wind? Fine, how air becomes a wind? So answer simply comes from that when the air starts blowing it is called wind. But why wind will blow? Suppose if I have a glass of water, that glass of water is like a static thing, but when that glass of water comes into motion, means the water comes into motion, so that moving water is called river if it has good volume. तो simply if air is there, अगर हवा है तो जब वो बहेगी तभी तो उसको हम विंड बोलेंगे। तो सवाल ये था कि वो विंड ब्लो ही क्यों करेगी, बिकॉज उस पर भी तो लॉ ऑफ इनर्शिया अप्लाई होगा। तो वो विंड तब ब्लो करती है व्हेन इट कम्स अंडर और इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट, मीन्स कि व्हेन देयर इज समवेयर हाई प्रेशर एंड समवेयर लो प्रेशर। अब इसमें अगर हम देखें तो देयर वी नो दैट ऑन द इक्वेटर देयर इज परमानेंट लो प्रेशर, on 30-35 there is permanent high pressure, 60-65 degree permanent low pressure, and then here it is permanent high pressure. अब आप देखिए, अब ये हाई प्रेशर लो प्रेशर ऐसा बनता ही क्यों है, क्यों ये यहीं पर होता है, ये आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा। फाइन, तो अब आप देखिए लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर। तो इन दिस केस if these are the permanent pressure belts, here these are permanent wind pressure belts, so wind start blowing from here to here into this direction
throughout the year. And from here to here into this direction, and thereafter from here to here into this direction. और कल मैंने आपको बताया था, this is called trade wind, this is called westerly wind, and this is called polar wind. Fine. And let us conclude here that these are called the permanent winds. Permanent winds. Done? I hope it is clear to everyone. Now, अब ये तो परमानेंट विंड हो गए. तो परमानेंट का विंड का जो फीचर देखा वो हमने ये देखा है कि इट हैज परमानेंट डायरेक्शन and permanent location. Now then the question is कि what is periodic wind? तो very simple answer or the argument that we can take, periodic. Periodic means literal meaning of the periodic there would be that suppose if it is a pendulum. आई होप दैट क्लास 9th में 10th में आपने पढ़ा होगा कि अगर मान ले कि ये पेंडुलम है तो ये पेंडुलम यहाँ सेंटर से एक बार यहाँ पे मूव करता है और इस सेंटर से एक बार ये यहाँ पे मूव करता है. फाइन. तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एक बार इस तरफ से इस तरफ होगी और दूसरी बार इस तरफ से इस तरफ होगी. और ये जो चेंज इन डायरेक्शन है दैट इज ऑन 180 डिग्री. सिमिलरली ये पेंडुलम यहाँ सेंटर में था, सेंटर से ये इस तरफ गया और यहाँ से ये इस तरफ आया और फिर ये इस तरह से मूव करता रहेगा. और इसी चीज को, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पेरियोडिक मोशन. पेरियोडिक मोशन. और यही जब विंड पे अप्लाई हो जाए कि एक विंड एक बार तो इस तरह से चलती है और उसके बाद से इस तरह से, तो इसी तरह के विंड को हम बोलते हैं पेरियोडिक विंड. आई होप इट इज क्लियर. लेकिन फिर यहां पर वही क्वेश्चन मार्क ये कि अगर ये विंड है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये विंड ऐसा मूव करना क्यों शुरू करेगी? Why a wind will start changing its direction from one side and other side? Then obviously ये सारा का सारा खेल किस बात पर डिपेंड करेगा? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जब ये विंड इस तरफ से यहाँ जा रही है तो यहाँ पर और यहाँ पर एक प्रेशर ग्रेडियंट है और उसके बाद से एक यहाँ पर और यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट है. ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है, यहाँ पर जब ये विंड यहाँ से यहाँ जा रही है तो यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है, और जब ये यहाँ से यहाँ आ रही है तो यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर. आई होप इट इज क्लियर. फाइन. कि जब ये प्रेशर यहां से यहां का हाई टू लो है तब ये विंड यहां से यहां मूव कर रही है, और जब ये यहां से यहां का इस तरफ आएगा तब ये यहां से यहां पे मूव कर रही है. अब सवाल ये उठता है कि ऐसा ये हाई और लो का चेंज ही क्यों होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है कि ये जो फैक्टर है ये फैक्टर है टेम्परेचर की वजह से. कि मान लेते हैं कि यहां पर टेम्परेचर और यहां पर टेम्परेचर, यहां पे टेम्परेचर और यहां पे टेम्परेचर चेंज होता है. अब जरा सा देखिए कि जब प्रेशर यहां पे हाई है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रेशर यहां पे हाई है तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर यहां पे लो होगा, लो टेम्परेचर होगा और प्रेशर हाई होगा. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो फॉर्मूला है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज इन ओपन
atmospheric system near the surface. Near the surface. All right. तो अब ये जो प्रोसेस है ओपन एटमॉस्फेरिक सिस्टम में नियर द सरफेस, तो यहां पर अगर मान लीजिए कि आपके पास जो टेम्परेचर है, सॉरी जो प्रेशर है वो हाई है, तो यहां पर टेम्परेचर लो होगा, और यहां पे अगर लो प्रेशर है तो यहां पर टेम्परेचर हाई होगा. ऑल राइट. और यहां पर फिर से टेम्परेचर, यहां पे अगर प्रेशर लो है यहां पे तो टेम्परेचर हाई होगा, और यहां पे टेम्परेचर लो होगा. तो जब टेम्परेचर में चेंज आएगा प्रेशर में चेंज आएगा, प्रेशर में चेंज आएगा विंड के डायरेक्शन में चेंज आएगा. ऑल राइट. तो अगर इसको हम ऐसे लिखें, कि चेंज इन टेम्परेचर changes pressure gradient and change in pressure gradient changes wind direction. I hope it is clear. Change in temperature here changes pressure, and change in the pressure changes pressure gradient, and that leads to the change in the wind direction. तो अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो पूरा का पूरा जो प्रेशर ग्रेडियंट जो चेंज हुआ, यहाँ इसने चेंज किया इसको, फाइन, इसने चेंज किया इसको, और फिर इसने चेंज किया इसको, और इसने चेंज किया इसको, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो डायरेक्शन है ये रिवर्स कर गया, या यहां से कह सकते हैं कि ये रिवर्स कर गया. तो अब ये ही चेंज क्यों हो रहा है, टेम्परेचर क्यों चेंज हो रहा है? तो एक बहुत ही सिंपल सा आंसर मैं आपको दे दूं कि अगर ये बहुत ही छोटे पैमाने पर हो रहा है ना, छोटे पैमाने का मतलब है ऑन अ स्मॉल स्केल, छोटे से रीजन में अगर ये हो रहा है, तो ये डिफरेंस तो डे और नाइट में भी हो सकता है. कि जब हम यहाँ पे लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो ये लो टेम्परेचर क्या हो सकता है? हो सकता है कि ये लो टेम्परेचर क्या आएगा? लो टेम्परेचर इज बिकॉज ऑफ द नाइट, फाइन, और ये हाई टेम्परेचर इज बिकॉज ऑफ डे, और यहां पे हाई टेम्परेचर इज देयर, दैट इज बिकॉज ऑफ नाइट, सॉरी बिकॉज ऑफ डे एंड हेयर बिकॉज ऑफ नाइट. अब फिर से आप इसी डायग्राम को देखिए कि दिन के टाइम पे, सॉरी रात के टाइम पे, व्हेन डे इज देयर, अगर सब मान लेते हैं कि दिस इज अ प्लेस एंड से द नेम ऑफ द प्लेस इज एक्स, नेम ऑफ द प्लेस इज एक्स, तो दिन के टाइम पे विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम एक्स टू वाई, दिन के टाइम पे ब्लोइंग फ्रॉम एक्स टू वाई. क्योंकि यहां पर उस वक्त में टेम्परेचर कम है. टेम्परेचर कम क्यों है? बिकॉज रात है, तो विंड ब्लो फ्रॉम दिस प्लेस एक्स टू वाई. उसके बाद से वहां पे रात हो जाती है, अब वहां पे टेम्परेचर कम हो जाएगा, और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो विंड विल स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम हियर टू हियर. तो देखिए सिंपल एक डे और नाइट का फैक्टर विल क्रिएट अ विंड सिस्टम, एंड दैट इज कॉल्ड periodic wind system. That is called periodic wind system. I hope it is clear to everyone. Now, अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको क्लियर नहीं हो पा रही है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स.
अब देखिए, जब आपने कहा कि पेरियोडिक विंड सिस्टम है, तो इस पेरियोडिक विंड सिस्टम के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? तो एग्जाम्पल ऑफ द पेरियोडिक विंड सिस्टम इज are land and sea breeze, mountain and valley breeze, and monsoon. Land and sea breeze, mountain and valley breeze, and monsoon. अब monsoon is example of reversal of the wind in the wind direction after 6 months. अब ये एक बड़ा फेनोमेना है जिसके बारे में हम लेटर ऑन जानेंगे. माउंटेन एंड वैली ब्रीज इज देयर एंड देयर चेंज इन द डायरेक्शन इज rather say reversal in the wind direction after 12 hours. 12 hours. This is the mountain breeze. Land breeze and sea breeze, it is also reversal after 12 hours. तो ये दोनों के दोनों में जो रिवर्सल होता है ये 12 आवर्स के बाद होता है. ऑलराइट, नाउ अब इसमें व्हाट इज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, हम पहले यहां से शुरू करते हैं. लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. This is ocean, and this is landmass. All right. So by applying this, we will be talking about the land breeze and the sea breeze. But now we know that there is sun overhead. Here it is sun, and the sun rays during daytime, what will happen, that the sun rays will start falling on this and on this. All right, now there we know that these waves come as short wave radiation,
short wave radiation, fine, and this is called insolation. But we know that this insolation is first, this atmosphere behaves like a transparent medium. This atmosphere behaves like a transparent medium. It does not absorb the radiation as it is, except certain things. Certain things like we know that there is a good presence of ozone layer. That ozone layer absorbs ultraviolet radiation, a part of insolation. Thereafter, there is a presence of water vapor in the atmosphere, and that absorbs the other part of solar radiation. Fine. Otherwise, rest of the radiation reaches on the surface, and when this surface absorbs it, so there you see it is said that land mass is heated up. It is said that this land mass is heated up very fast, and in comparison to the ocean. Here it is heated up very fast in comparison to the ocean, whereas the water body remains cold. So here it remains cold and it becomes warm. It becomes warm and during daytime. But why does it happen? देखने की बात है कि ये तो वार्म हो गया और ये कोल्ड हो गया, और क्यों हो गया? क्योंकि अभी डे टाइम चल रहा है एंड द सन इज ओवरहेड. सन इज ओवरहेड. तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो देयर यू सी अ वेरी सिंपल आंसर इज that when we talk about the land mass, then land mass is opaque. Opaque means what? It easily does not allow solar radiation to pass through, है ना? तो other meaning of the opaque, you can see it is non-transparent. On the contrary, here just let us make it number A. So here ocean part or the water is transparent. Thus sun rays enter deep into water. How much depth? So at least up to 200 meters. All right. So here if the thinness or the thickness of the surface is less, thus thickness of surface which has to be heated up is less. All right. Thus heat per unit area is high, whereas here volume of water is more, and thus heat per unit area is high. Heat per unit area is high. तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अब इसकी जो हीटिंग होगी वो ज़्यादा हो जाएगी. हीटिंग विल बी मोर.
हीटिंग इज लेस। इस बात को दिमाग में रखिएगा कि हेयर हीटिंग इज लेस, और जबकि वे देयर हीटिंग विल बी मोर। हीटिंग इज मोर। अब देखिए, अब ये इसका ए पॉइंट है ना। बी पॉइंट इज देयर that is very much linked with this कि when this insulation is entering here, so it is transparent and the medium is changed. Here it is the air medium and here it is water, and we know that when the sun rays enter into the different medium, so because of that difference what happens, it refracts. All right, now this is called refraction. Because of this refraction, now you can see the volume is increased. So once again we reach here, volume is increased, heat per unit area is ये mistake हो गई थी, heat per unit area is less. So because of that, heating is also less. Secondly, there we see that the refraction is there, so because of that refraction what will happen, this distance is also increased. Distance from source is also high, and if distance from the source of heat is high, difference from the source of heat is high, तो that way there would be the loss of heat also. जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक गर्म चीज़ है और उसके पास हम खड़े हैं तो हमें ज़्यादा गर्मी लगती है ना। जैसे विंटर्स के टाइम पर अगर हमने वहाँ पे कोई आग जला रखी है, बोन फायर बना रखा है, तो जब हम उसके पास खड़े रहेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे हमें ज़्यादा हीट लगेगा। लेकिन जैसे जैसे उसके हम दूर जाएंगे तो दूर जाने से जो टेम्परेचर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इज ऑल्सो हाई एंड दैट इज वाई हीट लॉस इज देयर। ऑलराइट, और ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में भी है। तो अब इसकी वजह से अब ये हुआ आपके पास फैक्टर नंबर बी, जबकि यहां पर क्या होता है, इसमें क्या होता है, नो रिफ्रैक्शन लॉस। नो रिफ्रैक्शन लॉस, दो बातें हो गई। अब देखिए, जब ये बात आई और जब ये बात आई तो अब क्या होता है कि जब हीट आ जाएगा यहां पे, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, water molecules are volatile. Volatile means the moment they will absorb the heat, they will start moving. The moment they will absorb the heat, they will start moving. क्या मतलब कि जो ही आपने पानी को गर्म करना शुरू किया, तो जब भी उसका जो फर्स्ट मॉलिक्यूल हीटअप होगा तो वो रैंडमली मूव करना शुरू कर देगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप चाय बनाते हैं तो आपने पैन में वाटर को रखा, जब पानी गर्म होना शुरू करता है तो छोटे छोटे से बबल्स जैसे नीचे नीचे बन जाते हैं और उसके बाद से पानी लगातार ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है। तो ये मूव करने का मतलब क्या है कि अब वो हीट एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाएगा, और जो ही हीट एक जगह से दूसरी जगह पर और खासकर डिफरेंट डिस्टेंस पर अगर जाएगी तो हीट का लॉस तो हो जाएगा ना। जबकि देयर इज नो सच लॉस ऑफ हीट इन द लैंड मास। ठीक ना, तो ये हुआ फैक्टर नंबर सी, और यहां पे कोई ऐसा लॉस नहीं हो रहा है। अब इसका जो इफेक्ट आएगा, और साथ में मैं आपको बता दूं कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, specific heat of water is 2.5 times greater than the land or solid। यानी कि एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट which is required to heat up a solid mass,
उससे 2.5 टाइम्स ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है अगर हमें एक वॉल्यूम ऑफ वाटर को गर्म करना हो, ठीक ना। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस की वजह से यहां पर पूरे मेरे एरिया में ये सरफेस रिलेटिवली कोल्ड रह जाएगा और ये सरफेस रिलेटिवली वार्म हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, कि एयर विल स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, and then it will come back this way, and this is called sea breeze. लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज का ये हुआ सी ब्रीज। तो दिन के टाइम पर जो हवा है वो सी से लैंड की तरफ चलती है और इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। ऑलराइट, लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है ना कि ये चीज़ तो हमेशा रहेगी नहीं, शाम भी होगी, और जब शाम होगी तो रात भी होगी, और जब रात होगी तो यही जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये चेंज कर जाएगा, क्योंकि अब डे लॉन्ग हीटिंग की वजह से जो समुद्र का पार्ट है दैट इज नाउ वार्म, और जो सॉलिड मास है वो तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक ना। जैसे कि आपने एक कढ़ाई गर्म की है और वो तो कढ़ाई अगर आप छोड़ दीजिए, बर्नर आप ऑफ कर दीजिए गैस का, तो फिर वो ठंडी होनी शुरू हो जाती है। जबकि उसके कंपैरिजन में अगर 1 लीटर पानी भी आपने उबाला हुआ है तो वो पानी धीरे धीरे ठंडा होगा। तो समुद्र में या पानी का फीचर होता है कि वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, जबकि जो लैंड मास है, सॉलिड है, वो जल्दी से गर्म होगा और जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा। तो अब दिन के टाइम पर दिस लैंड मास इज नाउ हीटेड अप, land mass is heated up and land mass is cold now, and this ocean is heated up. So in that case different type of wind system will generate. और ये दिन का टाइम है, तो ऑब्वियस सी बात, रात का टाइम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, दिस इज मून, नाइट। तो एट नाइट व्हाट विल हैपन, नाउ here and here once again pressure difference will be, and this difference is that now the oceans have the low pressure and land has high pressure, then obviously wind will start blowing this way. This way, and this is called land breeze. लैंड ब्रीज। अब आप देखिए कि ये जो लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज है, तो क्यों इसको हमने बोला कि पेरियोडिक, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो इस तरफ से है, सी टू लैंड है, और यहाँ जो डायरेक्शन है वो कैसे है, लैंड टू सी है, एंड दैट इज व्हाई लैंड ब्रीज एंड द सी ब्रीजेस आर द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पेरियोडिक विंड सिस्टम। अब ये जो होता है ये तो सारे के सारे कोस्टल एरिया में आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे मुंबई है, कोच्चि, चेन्नई, कोलकाता, सारे के सारे रीजन्स में आपको मिलेगा। अब आप क्या मुझे ये बता सकते हैं कि ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का क्या इंपॉर्टेंस है? फाइन, आपने कोई एक इंपॉर्टेंस इसके कमेंट बॉक्स में बताना है। प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ योर आंसर इज करेक्ट देन डेफिनेटली I will appreciate.
हमारे इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आप हमारे इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करेंगे, एंड प्लेजर विल बी ऑल माइन एंड ऑफ आवर टीम इफ you will like and subscribe. Thank you very much for being with us.